So we'll start. So in this session, we are going to discuss some recent economy-related current affairs. Fine. So economy-related current affairs. What my plan is, I'm going to discuss all those sessions. Fine. Like from August to जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का जो है ना वो सारा डिस्कस करेंगे एंड यू विल गेट इन द वीडियो ऑल्सो. फाइन. जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो बाकी मैं आई विल से द विप्लव ही विल प्रोवाइड यू. ठीक है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज ऑल द थिंग्स इन डिटेल rather than going for the factual information. Whatever the issue I am going to take, that will in the totality. जो भी issue हम डिस्कस करेंगे वो टोटलिटी में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो जो उसमें पहला टॉपिक है आप लिखिए. I hope all of you are aware of this thing, 16th Finance Commission. ठीक है. तो 16th Finance Commission, what is the duration of 16th Finance Commission? From which year to which year? 16th Finance Commission का ड्यूरेशन लिखो लिखो. राइट राइट. Government of India with an approval of President. Government of India with an approval of President of India has constituted 16th Finance Commission. 16th Finance Commission has constituted 16th Finance Commission under Article 280 Clause 1. Under Article 280 Clause 1. Dr. Arvind Pangaria. Dr. Arvind Pangaria, former chairman of Niti Aayog, former vice chairman of Niti Aayog, will be the chairman. Will be the chairman. Whereas Ajay Narayan Jha, comma, Annie George Matthew, comma, Niranjan Raja Dhyaksha, RAJADHYA Niranjan Rajadhaksha and Soumya Kanti Ghosh will be the member of commission. Will be the member of commission. And Ritvik, RITVIK, Ritvik Pandey will be secretary to the commission. Will be the secretary to the commission. ठीक है. इसी में लिख लेना सौम्य कांति घोष will be
part-time member. Soumya Kanti Ghosh will be part-time member. Will be part-time member. Next line में लिखो 16th Finance Commission has been requested. 16th Finance Commission has been requested to make its report available. To make its report available by 31st October 2025. 16th Finance Commission has been requested to make its report available by 31st October 2025. 31st October 2025, covering a period of 5 years. Covering a period of 5 years, starting from 1st April 2026. 1st April 2026. ठीक है. अब नीचे लिखो 16th Finance Commission will make recommendations. ब्रैकेट में लिखना अंडर आर्टिकल 280 क्लॉज 3. Under Article 280 Clause 3. 16th Finance Commission will make recommendation bracket में under 280 Clause 3 on following matters. On following matters. Number 1, distribution between union and states. Union and states of net proceedings of taxes. Net proceeding of taxes. Net proceeding of taxes. That is vertical distribution. That is vertical distribution. Under chapter 1, part 12 of the Constitution. ठीक है. And allocations among the states. Allocation among the states of the respective share of such proceeds.
such proceeds. That is horizontal distribution. That is horizontal distribution. So अभी आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस फाइनेंस कमीशन. ठीक है, तो सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन बैक इन 1858. ठीक है, 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज में आती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर, उसके पहले किसका रूल है? कंपनी का रूल है. 1858 में कौन आता है? इन 1858 गवर्नमेंट केम इनटू द पिक्चर. So when government came into the picture, the administration was completely centralized. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया के अंदर क्या है? That is completely centralized. By 1820, the need of decentralization was felt. Fine. So Warren Hastings and other governors, they have tried to go for some sort of decentralization of power. When there is a talk of decentralization of power, fine, then decentralization should be happen in such manner the decentralized units must have an ability to function autonomously. अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी यूनिट्स हैं उनके पास इंडिपेंडेंट फंक्शन करने की पावर होनी चाहिए, एंड दैट पावर शुड नॉट बी लिमिटेड टू द लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, बट ऑल्सो विद सम फाइनेंशियल पावर. साथ में क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल पावर भी होना चाहिए. व्हेन आई से द फाइनेंशियल पावर, तो फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या है? आपने कोई लॉ मेकिंग करा, ठीक है, लॉ मेकिंग किया, उस लॉ मेकिंग में आपने बोला कि यू आर गोइंग टू इम्पोज द टैक्स, this tax we are going to impose in the provinces, fine, and the collection of those proceedings will go to state. ठीक है, province को ही जाएगा. ठीक है, so province is going to impose some tax and that proceedings will remain with whom? Province only. So this is giving you the financial power. Why? Because before that you cannot impose a tax. You can make other rules and regulations. ठीक है, आपके पास बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाने का पावर है, बट आपको टैक्स लगाने का पावर नहीं है. तो दैट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन केम इन 1960s. ठीक है, 1960s में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है जहां पर आपको टैक्सेशन लगाने की पावर भी मिलती है. ठीक है, तो अब टैक्सेशन लगाने की पावर है प्लस स्टेट्स को, बट मोस्ट ऑफ द पावर टू इंपोज अ टैक्स इज स्टिल रिमेन विद whom? द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे स्टार्टेड डिस्कसिंग विद द central government कि we need more powers, number one, to impose the tax, and we need more proceedings from you in terms of the tax which you are collecting. आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उस कलेक्टेड टैक्स में से हमें भी हिस्सा चाहिए. ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, ये चलता है. फाइनली यू केम टू दिस पॉइंट कि वी हैव टू गो फॉर सच ए मैकेनिज्म सो दैट इट विल बी परमानेंट इन द नेचर. कैसे? 1840s के बाद अगर आप इंडिया में देखेंगे तो टाइम टू टाइम द कमीशन इज कमिंग. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कमीशन आ रहा है और वो बता रहा है कि फॉर नेक्स्ट 10 years, फॉर नेक्स्ट 15 years टैक्स विल बी डिवाइडेड इन दिस मैनर. दिस टैक्सेशन पावर विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस टैक्सेशन पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट. सो फ्रॉम 1840 टू 1920, ये जो 90 years का फेज है इंडिया के अंदर, इसमें हो क्या रहा है? डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस आ रहे हैं एंड दे आर टेलिंग द गवर्नमेंट कि इन दिस वे यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टैक्सेस, दिस टैक्सेशन पावर विद द स्टेट, दिस टैक्सेशन पावर विद द सेंटर. सो दिस इज हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस. Finally, when the Government of India Act 1935 came, fine. So in the Government of India 1935, what they did, they take some clue from where? Australian Constitution. जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर आप देखते हैं कि वहां पे भी फेडरल स्ट्रक्चर है. And in the Australian system, the federal structure is like that. The states have more power in comparison to whom? Their central government. ठीक है, जो वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास टैक्सेशन में लेस पावर है और आपका किसके पास? प्रोविंसेस के पास ज्यादा पावर है. बट द पॉइंट इज कि दे हैव अ सिस्टम ऑफ रेगुलर फिक्स्ड कमीशन. एक रेगुलर फिक्स कमीशन का सिस्टम है एंड दैट फिक्स कमीशन कम्स आफ्टर एवरी 5 to 7 years और वो कमीशन आता है और वो रिकमेंड करता है अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कि आगे आने वाले टाइम के लिए हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस. फाइन. सो दे हैव अ परमानेंट कमीशन. व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया?
In India, what is happening? In India, they are asking commission to come after some point of time. For example, a commission has given the recommendation in 1840. The next commission came into the 1862. The next commission came into 1874. So in this way, randomly commissions are coming as per the need raised by the states. State push कर रहे हैं, जो provinces जिसको हम बोलते थे, they are pushing their needs कि we need a commission, we need a commission. Then you are doing that thing. So in Government of India Act 1935, what they decided कि we are going to have a system of a permanent commission, and that commission system based on the Australian Constitution. इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंस कमीशन का जो provision है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से borrowed है? That is borrowed from Australian Constitution. But actually that provision is borrowed from Government of India Act 1935. Actually almost 70 to 80%, ठीक है, almost 80% of Indian Constitution is from where? Government of India Act 1935. But that acts were amended. The provisions of those Government of India Act 1935 was amended in order to cater the requirement of India and Indian people. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो किसकी रिक्वायरमेंट को केटर करने के लिए है? वो अल्टीमेटली किसको रिस्पॉन्स करेगा? ब्रिटेन को, ठीक है। तो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग है वो, लेकिन उसमें चेंजेस किए जाते हैं कब? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा सर्टेन चेंजेस किए गए, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और हमने अकॉर्डिंगली उन प्रोविजंस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। सो बाय दैट यू हैव अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इन सम अदर कंट्रीज लाइक यूएस, फाइन। So in the US, the power of taxation is very clearly demarcated. Who will impose the tax? Who will collect the tax? And who will have that proceedings? कौन टैक्स लगाएगा, कौन उसे वसूलेगा, और कौन उसे रखेगा? So there is a clear-cut difference. Fine. Whereas in the country like Britain, fine. So Britain is a small country. So unitary government is there. So provincial government do not need to have such kind of taxation power. सेम केस ऑफ द फ्रांस। तो फ्रांस इज ऑल्सो काइंड ऑफ द यूनिटरी कंट्री, जहां पर आपका फेडरल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वहां पर कमीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ वी टॉक अबाउट द रशियन फेडरेशन, सो दैट इज ऑल्सो अ फेडरेशन। So in the Russian Federation, same kind of the structure you can find where the Russian Federation also have a commission system, जहां पे वो taxes को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन केस ऑफ द नाइजीरिया, अगर आप नाइजीरिया का भी केस देखेंगे तो नाइजीरिया के केस में भी फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन मिलता है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको फाइनेंस कमीशन जैसे कमीशन का ही प्रोविजन मिलता है। नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द सिस्टम डू एग्जिस्ट। तो नाइजीरिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, रशियन फेडरेशन हो गया, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑस्ट्रेलिया का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है मोर और लेस क्रिएटेड बाय होम? ब्रिटिश। फाइन। तो इन दिस वे you can find the British way of constitution making go in two directions. Where the country is a small and unitary kind of the thing, they didn't went for any commission system. लेकिन जहां पे country का size बड़ा है and there is a need of decentralization, they went for what? A permanent commission system in order to collect the tax, impose the tax, collect the tax, and when the proceedings are going to be what? Distributed. Fine. So in this way, we also have a finance commission under Article 280. So Article 280 Clause 1, it tells about the establishment of finance commission. ये establishment of finance commission के बारे में बताता है कि there will be a commission. ठीक है। तो under Article 280 Clause 1, government have to establish a commission. अच्छा, ये जो commission है वो 5 years के लिए है। तो अब जो ये commission है इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? 1 अप्रैल 2026 से कब तक? 31st मार्च 2031। फाइन। तो अब होगा क्या? Once this commission is going to give its recommendation, by what date they are going to give the recommendation? By 31st October 2025. So by this time they are going to give the recommendation. So by October they are going to give the recommendation, and government will go through that recommendations, and accordingly when government is going to present the budget of financial year, which of the financial year 26-27, by what date? 1st Feb 2026. So as per present system we do present our budget on 1st February. हम कब budget present करते हैं?
1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करते हैं। तो फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन, इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। नाउ वंस यू विल प्रेजेंट द रिपोर्ट, जब ये रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाएगा, आफ्टर दैट इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इट एज इट इज or make certain changes. But if government is going to make any changes or tweaks or changes in the recommendation given by the finance commission, finance commission ने जो recommendation दिया है, अगर आप उसमें कोई change करेंगे, then you have to give the explanation in the parliament कि why we have changed such things, you have to provide the explanation. So accordingly, but more or less if you will see, there is no drastic change. When the finance commission give its recommendation, there is no drastic change. They generally accept almost as it is with some small minor changes. They do accept as it is. Sometimes finance commission also provides certain suggestions. ठीक है, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि there is a need for a intergovernmental body of center and state. Center state का एक intergovernmental body होना चाहिए for the purpose of looking in the issue of what? In the issue of fiscal consolidation. जो स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा जा रहा है, बोरोइंग दोनों की ज्यादा जा रही है, तो देयर इज अ नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन ऑर्डर टू कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ एफआरबीएम एक्ट रिकमेंडेशन। तो एफआरबीएम एक्ट के जो रिकमेंडेशन थे, जो क्लॉजेस हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ सिनर्जी। मींस सेंटर एंड स्टेट शुड नॉट वर्क इन द साइलोज। साइलोस का मतलब समझते हो? व्हाट इज साइलो? हाँ, यस। सो जनरली मिसाइल्स आर स्टोर्ड इन साइलोज। तो इस तरह से आपके ट्यूब्स हैं और उस ट्यूब में क्या है? उस ट्यूब में आपने स्टोर करके रखा हुआ है मिसाइल्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज साइलोस। उन्हीं को हम साइलोस बोलते हैं। इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो एक में यहां पे मिसाइल स्टोर है, एक में इधर स्टोर है, एक में इधर स्टोर है, सो दे डू नॉट नो ईच अदर. So that is a silo approach. So in the FRBM Act, there is a provision of having states FRBM. तो states का अपना FRBM है, central government का अपना FRBM है. So they are working in their respective domain. So Finance Commission, 15th Finance Commission observed that such kind of the functioning is not appropriate. You should go for an intergovernmental body. आपको क्या फॉर्म करना चाहिए? एक intergovernmental body फॉर्म करना चाहिए. But that was not happened at all. ठीक है, अभी तक तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ है. So now how the 16th Finance Commission is going to take this issue? Because 15th Finance Commission suggested, but on that suggestion, central government has not did anything. They didn't did anything. Though there is a talk of what? Cooperative federalism. ठीक है, cooperative federalism का बात है, but apart from that talk, there is no something substantive have happened after the recommendation was given by whom? Recommendation, not suggestion. Suggestion was given by 15th Finance Commission. 15th Finance Commission suggestion देता है कि आप ये काम करिए, but ऐसा कुछ हुआ नहीं. Now how the 16th Finance Commission is going to react on these developments? कि the earlier Finance Commission has suggested something, but you have not did anything. Now how they are going to react? तो एक possibility ये है कि they are going to say that कि there is no need of having such kind of the synergic approach. एक possibility हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 16th फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू से दैट कि अर्लियर फाइनेंस कमीशन हैज सजेस्टेड बट गवर्नमेंट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड इन एनी वे एंड दिस इज नॉट राइट वे ऑफ एड्रेसिंग सच ए सीवियर इशू लाइक फिस्कल कंसोलिडेशन. सो गवर्नमेंट मस्ट हैव टू गो फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी व्हिच हैव this member, this task. Why? Because the 15th Finance Commission, they have recommended that there should be intergovernmental body, but they do not come with what they have to do. भाई आप बोल रहे हो कि एक intergovernmental body होना चाहिए, but that intergovernmental body, what they are going to do, what kind of the function they are going to have, what kind of the power they should have in order to address this issue, इस चीज का कोई mention नहीं किया गया. There is no mention of that. So this is why it is going to be very interesting how this Finance Commission going to approach this issue. ठीक है, तो ये चीज हो गया. अब जो आर्टिकल 281 में अपॉइंटमेंट है और आर्टिकल 280 क्लॉज 3, अंडर द क्लॉज 3 गवर्नमेंट हैव टू गिव सर्टेन थिंग्स.
जो 280 clause 3 that allows or empowers the government of India to ask finance commission to perform certain duties. ठीक है, अब वो जो certain duties है उसमें कुछ mandatory चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोसीडिंग ऑफ टैक्सेस, horizontal distribution and vertical distribution, that is mandatory part of finance commission. ठीक है, apart from some mandatory things, there are certain other scope where central government asks the finance commission to perform this duties also. So there are the two kind of the report is going to be presented by finance commission. Finance commission का जो report होगा वो basically दो part में होता है, एक recommendatory in the nature और एक suggestions. तो एक recommendations है और एक क्या है, suggestion है. What is the difference between recommendation and suggestion? But recommendations are also not bound to be accepted. Whenever the recommendation is being given and if you disagree, then you have to provide your explanation कि why you disagree. Suggestion can be simply refused. ठीक है, so that is suggestive in the nature. So your suggestions I do not, मैंने suggestion का मतलब क्या है, आपने नहीं पूछा था फिर भी मैं आपको बता रहा हूं. Recommendation means what? You asked me to do something and I did. If you are disagree with that, let me also know the reason why you disagree. तो recommendations हो गए, ठीक है. And sometimes recommendations are bound in the nature, but generally finance commission के केस में होता नहीं है. There is only one commission, that is what? Delimitation commission. So delimitation commission's recommendations are what? They are bound in the nature. They are mandatory in the nature. आपको as it is accept करना पड़ेगा because that is a judicial commission. ठीक है, वो जुडिशियल कमीशन होता है, जो सिटिंग जज होता है वो उसको हेड करता है. मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज होते हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, दे डू हेड दैट डिलिमिटेशन कमीशन एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी इन द नेचर फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दोस रिकमेंडेशंस. तो डिलिमिटेशन कमीशन पर हम सेपरेटली बात करेंगे, अब इस पे हम बात कर लेते हैं. तो दो तरह का हो गया, जिसमें मैंने आपको एक लिखाया कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दूसरा लिखिए उसमें the principle which should govern the grant in aids of revenue of the states, out of the consolidated fund of India, Third, the sum total to be paid, to states by the way of grant in aid to their revenues under article 275 of the Constitution, Article 275 of the Constitution, for the purpose of other than
other than specified in the provision of clause 1 of the article. Of the article. ठीक है. Now, just understand this point first. When we talk about Article 275, ठीक है, तो Article 275 में दो तरह के ग्रांटी नेट की बात हो रही है. बेसिकली Article 275 जो है वो किसकी बात कर रहा है? Article 275 it talks about grant in aid. ठीक है, grant in aid to whom? States from consolidated fund of India. ठीक है, but that grant in aid from consolidated fund of India, that is divided into two parts. एक है मैंडेटरी इन द नेचर. ठीक है, दैट इज मैंडेटरी इन द नेचर. स्टेट को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट हैव प्रोवाइड. तो एक है मैंडेटरी इन नेचर, दैट इज अंडर आर्टिकल 275(1). तो 275(1) में जो बोल रहा है दैट इज मैंडेटरी इन द नेचर. सो व्हाट दिस क्लॉज जो आपने थर्ड पॉइंट लिखा है वहां पे व्हाट आई हैव मेंशन कि यू हैव टू प्रोवाइड हु? फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन हैव टू प्रोवाइड व्हाट? फाइनेंस कमीशन हैव टू प्रोवाइड इट्स रिकमेंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग दिस वन. आपको इसके लिए रिकमेंडेशन देना है. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है किस पे? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. यूनियन को कितना, स्टेट्स को कितना, दैट इज व्हाट? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिर आप गए सेकंड पे. सेकंड यू हैव वेंट फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. टू ईच स्टेट्स कितना जाना है? स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 ऐसे करके फॉर ऑल द स्टेट्स हाउ मच यू आर गोइंग टू रिकमेंड ऑन व्हाट बेसिस. थर्ड is the mandatory recommendation under Article 275(1). Then discretionary means that is going to be what? That is going to be on the wish and will of whom? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस बेसिस पर स्टेट्स को ग्रांट करेगी? तो ध्यान रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275. वन इज मैंडेटरी इन द नेचर, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 275 क्लॉज 1. बाकी जो क्लॉज है 275 का वो किसके बारे में बात करता है? दोज रिकमेंडेशंस, दोज ग्रांट इन एड which will be given by central government on recommendation of finance commission. But here center may refuse to give it. ठीक है, यानी जब फाइनेंस कमीशन को टर्म दिया जाएगा, टर्म ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा, तो टर्म ऑफ रेफरेंस देते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेल यू what central government is going to tell you. Central government, suppose central government is not going to tell you anything. Central government ने कुछ नहीं बोला और आपको बोला कि फाइनेंस कमीशन ने एस्टैब्लिश कर दिया. Even then, फाइनेंस कमीशन is going to tell about this, this and this. तब भी वो बताएगा क्योंकि that is mandated to the finance commission as per the constitution. ठीक है, constitution के accordingly ही देना है आपको. But this thing, जो डिस्क्रिटनी ग्रांट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट इज गिवन टू द फाइनेंस कमीशन और नॉट. यहां पे जरूरी नहीं है कि फाइनेंस कमीशन से ही पूछा जाए, बट हिस्टोरिकली क्या है कि फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इट इज ऑलवेज गिवन टू हुम? फाइनेंस कमीशन को ही दिया जाता है. बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि फाइनेंस कमीशन ही बताएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो खुद से भी डिसाइड कर सकती है. बट हिस्टोरिकली हमने क्या किया है? हमने फाइनेंस कमीशन से ही पूछा है कि क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए. ठीक है,
क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट? मैंडेटरी और डिस्क्रिटनी वाले में डाउट है। देखो ग्रांट इन एड है, ठीक है, सो देयर इज अ ग्रांट इन एड। दिस ग्रांट इन एड मींस व्हाट? वी हैव टू हेल्प द स्टेट्स, वी हैव टू हेल्प द स्टेट, ठीक है। या एक काम करो, आप लिख लो वहां पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन Article 275 of Constitution deals with grant from union to states. To certain states लिखो, to certain states. To certain states. The article empowers Parliament to provide may provide grant in aids, grant in aid, charge from the Consolidated Fund of India. Under 75, under Article 275(1), it is mentioned for certain states, mentioned for certain states, comma, under Article 275(1)(a). One A, it is mentioned for autonomous state, autonomous state under Article 244A. And in Article 275 Clause 2, power is given to Parliament
power is given to Parliament to provide grant in aids just give me a second, huh? क्या लिखा आपने? लास्ट लाइन रीड कर देना। Grant in aids. Till then, Finance Commission is not been constituted. ठीक है, तो there, see, when the Indian Union was formed, certain states was not very willing, fine, to join the Indian Union because of their unique issues. So we have went for a good negotiation with the certain states कि if you will join union, why? Simple reason. See, the union is going to be formed. Fine. So certain states are joining and certain states are saying that no. In your constitution, you have a provision to provide the financial aid in this manner. And what I feel that it is not necessary for us. आप जो हमें provide कराएंगे under the constitution, वो हमारे लिए necessary, sufficient नहीं होगा. भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ join my union. So some of you have joined my union, but some of you are saying that it is not feasible for us because we have our own unique needs and requirements. So I said, okay, fine, no issues. In our constitution, I am going to make certain provisions where certain states will going to get a grant in aid. कुछ states को grant in aid मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? And that grant in aid will be recommended by whom? Finance Commission. ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेट्स का केस हो गया जो कि 75 to 75(1) में दिया हुआ है, ठीक है? फिर ऑटोनॉमस स्टेट्स की बात बनाने की आई इंडिया के अंदर, when the certain states are having insurgencies और अदर डिस्टर्बेंसेस रिगार्डिंग दे वांट देयर ओन सेपरेट स्टेट, ठीक है, उनको अपना सेपरेट स्टेट चाहिए। तो सेपरेटिज्म को रोकने के लिए आपने क्या प्रोविजन किया कि वी कैन क्रिएट सम ऑटोनॉमस स्टेट जहां पर उनको पावर्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो उसका प्रोविजन आपने किया और कहा कि जब ऑटोनॉमस स्टेट बनेगा, व्हेन द ऑटोनॉमस स्टेट इज गोइंग टू बी फॉर्म, दैट ऑटोनॉमस स्टेट इज आल्सो गोइंग टू हैव सेम प्रोविजन जो आर्टिकल 275(1) में लिखा हुआ। 275(1) में क्या मेंशन किया? व्हाट दे हैव मेंशन कि सर्टेन स्टेट्स विल गेट अ ग्रांट, बट दैट सर्टेन स्टेट्स इज नॉट एन ऑटोनॉमस स्टेट। सो दिस इज व्हाई व्हाट यू डिड, you have created what? You have created a separate article 275(1)(a. तो आपने अमेंडमेंट किया और क्या लिख दिया? 275(1)(a और मेंशन कर दिया वहां पे किसका? ऑटोनॉमस स्टेट का मेंशन कर दिया। फाइन। अब जब आप 275(2) में आते हो, 275(2) में आते हो तो वहां पे मेंशन किया गया, व्हाट दे हैव मेंशन देयर कि इन 275(2) दे हैव मेंशन कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड ग्रांट इन एड। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, 1 में क्या लिखा है? गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड। तो फर्स्ट वाला मैंडेटरी है गवर्नमेंट के ऊपर कि ग्रांट इन एड देना ही पड़ेगा सर्टेन स्टेट्स को। वहीं पे जो 75(2) है, 75(2) में फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा एंड फाइनेंस कमीशन कैन सजेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ग्रांट इन एड टू एनी स्टेट। तो 275(1) में क्या है? इन 275(1) certain states like असम, तो यहां पर उन certain states का नेम मेंशन किया गया है कि इनको आपको ग्रांट इन एड देना ही देना है। वहीं पे जब आप जाओगे किसमें? 275(2) में,
सो देर इज नो मेंशन ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम मेंशन नहीं है, ओनली रिटन हियर इज व्हाट, सम स्टेट्स. तो दिस इज like an obligation on government of India under the finance commission to provide grant in aid to them. आपको grant in aid provide कराना ही पड़ेगा, ठीक है. और यहां पर certain states, किसी भी स्टेट को grant in aid देनी है कि नहीं देनी है. फॉर एग्जाम्पल when finance commission is going to go through all the states, जब वो सारे स्टेट्स को गो थ्रू करेगा तो मे बी फाइनेंस कमीशन से दैट कि दीज स्टेट्स नीड एन स्पेशल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल इश्यूज, कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे हैं जिसके चलते, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता था, तो जम्मू एंड कश्मीर को दिया जा रहा है या किसी स्टेट को पर्टिकुलर बोल दिया, फॉर एग्जांपल केरल को ही बोल दिया कि भाई केरल का जो सिचुएशन है, हालांकि देयर इज हाईली अनलाइकली कि केरल इज गोइंग टू बी गॉट सच काइंड ऑफ असिस्टेंस, बट मे बी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि केरल का नाम इसमें मेंशन नहीं है. केरल इज नॉट मेंशन इन द 275(1). सो इफ इट इज नॉट मेंशन इन 275(1), ठीक है, देखो है क्या, फाइनेंस कमीशन को बोला जा रहा है क्या करो, स्टेट्स को फाइनेंस हमें देना है, मतलब वी नीड टू हेल्प द स्टेट्स इन ऑर्डर टू मीट देयर रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स. फाइन, तो उनकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होगी? फर्स्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोसीडिंग आ रहा है उसको हम देंगे किसे? स्टेट्स को देंगे, ठीक है, उनकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए. बट जब ये चेक किया गया कि क्या उस रेवेन्यू शेयरिंग से उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, तो इट वाज फाउंड दैट कि नो, not possible. Then what we have to do? We have to provide a grant in aid. और जब हमने इंडियन यूनियन के स्ट्रक्चर को देखा तो हमें लगा कि सर्टेन स्टेट्स तो ऐसे हैं who are always going to need grant in aid, उनको हमेशा ही ग्रांट इन एड की नीड पड़ेगी. जैसे स्टेट ऑफ असम की बात करी तो हमेशा इनको ग्रांट इन एड की जरूरत पड़ेगी. तो जिनको हमेशा ग्रांट इन एड की जरूरत पड़ेगी उसको हमने किस में रख दिया? 275 क्लॉज 1 में रख दिया. अब कभी किसी स्टेट को कुछ टाइम के लिए अगर जरूरत पड़ेगी किसी भी रीजन से, नेचुरल डिजास्टर आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ भी हो गया, स्टेट इज व्हाट, सपोज दैट पाकिस्तान अटैक्ड ऑन द इंडिया, ठीक है, अब वो ईस्टर्न पाकिस्तान था, वो ईस्टर्न पाकिस्तान था ना, तो ईस्टर्न पाकिस्तान वाज वॉर विद द इंडिया. सो ईस्टर्न पाकिस्तान विद द वॉर विद द इंडिया, तो व्हिच स्टेट्स आर बीइंग गेट अफेक्टेड? तो पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये अफेक्टेड स्टेट हो गए. इधर कौन से स्टेट हो गए? असम हो गया, आपका बंगाल हो गया. सो दे आर गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ वॉर और बिकॉज ऑफ ह्यूज फ्लड. तो बिकॉज ऑफ ह्यूज फ्लड और नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर मे बी सर्टेन स्टेट्स नीड मोर अटेंशन. बट आपने तो उसको 75 में 1 में तो मेंशन ही नहीं किया है, तो उनको ऐड कैसे दोगे? इसलिए उन्होंने किसका प्रोविजन किया? 75(2) का प्रोविजन किया. अभी क्लियर हो गया? ठीक है, आगे लिखो. फोर्थ लिखो, द measures needed to augment, the measures needed to augment consolidated fund of state to supplement the resources, of panchayats and municipalities in the state on the basis of recommendations made by State Finance Commission. Recommendations
made by State Finance Commission. Now, what is it? ये है क्या? See, we have a Finance Commission which is basically going to look issue of whom? Union and state. Similarly, there is a State Finance Commission which is going to look the issue between state and local bodies. ठीक है, लोकल बॉडीज जिसमें पंचायत भी आते हैं, पंचायत एंड अर्बन बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज. सो वंस द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू रिकमेंड कि दिस अमाउंट शुड बी गिवन टू whom, this amount should be given to whom? Local bodies. So how this amount going to be given to the local bodies? We know that कि there is a consolidated fund and this is for union as well as states, दोनों के लिए होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंस कमीशन लेकर आ रही है दैट इज गोइंग टू सजेस्ट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम विच? यूनियन के कंसोलिडेटेड फंड से. तो सिमिलरली जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है, देखो ऐसे है, कंसोलिडेटेड फंड, यूनियन और स्टेट. ठीक है, तो अब जो यूनियन का कंसोलिडेटेड फंड है वो किसके बारे में बोलेगा? वो बोलेगा सबसे पहली बात वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर किसके बारे में बोलेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलेगा. ठीक है, फिर वो किसके बारे में बोलेगा? ग्रांट इन एड के बारे में बोलेगा. फाइन, ये तीन चीजों के बारे में बोलेगा. सिमिलरली जो स्टेट की बात जब आएगी तो फाइनेंस कमीशन एक तो यहां पर है जिसको कि हम यूनियन फाइनेंस कमीशन भी कह सकते हैं, और इधर क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन. तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू सजेस्ट what? That is going to suggest vertical distribution. State and local bodies from consolidated fund of स्टेट. स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे लोकल बॉडीज को कितना जाएगा, स्टेट्स को कितना जाएगा, ये कौन बताएगा? ये स्टेट का फाइनेंस कमीशन बताएगा. बट इट इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट कि जो रिकमेंडेशन दिया गया है किसके लिए? लोकल बॉडीज के लिए. कहां से? कंसोलिडेटेड फंड से. स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा जाना है वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में पैसा होना भी तो चाहिए. अगर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में पैसा होगा ही नहीं तो हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द लोकल बॉडीज? तो हाउ टू ऑगमेंट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड so that state consolidated fund can implement the recommendation of State Finance Commission for grant and aid to whom? Local bodies. तो ये काम भी किसका है? यूनियन फाइनेंस कमीशन का है कि वो बताएगा कि कैसे ऑगमेंट करना है किसको? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को, जिससे कि जो स्टेट के फाइनेंस कमीशन ने बोला है क्या कि लोकल बॉडीज को इतना पैसा मिलना चाहिए, ये भी बताएगा. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद एक और चीज ऐड करी गई है इस बार 16 फाइनेंस कमीशन के टास्क में, उसको भी लिख लीजिए. The other aspects of Finance Commission, 16 Finance Commission, the other aspects of 16 Finance Commission to look into
these matters and provide recommendations. नंबर 1, इसमें 3 पॉइंट है, उसको अलग से लिख लो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं. नंबर 1 इज suggestion on fiscal consolidation roadmap. Suggestions on fiscal consolidation roadmap. Number 2, reviewing deficit and debt level. Deficit and debt level of union and states. Union and states. Union and states. Third, suggestion on disaster relief mechanism. Disaster relief mechanism. See, historically there is a data, and that data shows that whenever the Finance Commission is being established and when they have given their recommendation, question was asked in UPSC exam. पूछा है, 100% पूछा है. ये तो पेपर 2 में पूछेगा, नहीं तो पेपर 3 में पूछेगा, ठीक है, नहीं तो प्रीलिम्स में पूछेगा. तीनों में से एक जगह क्वेश्चन आना 100% तय है, और ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है मेंस में आने की प्रीलिम्स के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रीलिम्स के कंपैरिजन में क्योंकि वहां पे डेटा ड्रिवन होता है, तो डेटा के बेसिस पर क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जो स्टेटमेंट अगर वो लिख देगा तो पकड़ना आसान होता है. तो फाइनेंस कमीशन को लेकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन कम आता है और मेंस में क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है. तो आप इस बात को दिमाग में रखना. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर with respect to the finance commission and its different dimensions should be good enough in order to write an answer, not just to fill the bubble. ठीक है, बबल फिल करने से ज्यादा आपकी ये अंडरस्टैंडिंग इस पे होनी चाहिए कि आप आंसर लिख सको, और आंसर तभी लिख सकते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, अदरवाइज आप आंसर नहीं लिख सकते हो, ठीक है. तो यहां पर 3 चीजें मेंशन करी है. पहला उन्होंने क्या मेंशन किया है, पढ़ो, कोई एक पढ़ दो. Fiscal consolidation roadmap. What is fiscal consolidation? In simple straightforward term, when we talk about the fiscal consolidation, अगर हम fiscal consolidation की simple सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो fiscal consolidation means what? You have to control your debt. Number 1, debt may be provide you an opportunity to create capital. By the capital expenditure, by raising the debt, you can go for the capital formation. But the formation of capital is not always certain. Some special circumstances, some unforeseen circumstances may come for the longer duration and you will be in the huge debt. So this is why you should restrict yourself while borrowing. Number 1. Number 2, you should find more and more avenues in order to increase your revenues. Fine. So that there will be less borrowing or no borrowing for revenue expenditure. ठीक है. Third, government must have optimized their expenditures in such a way so that unnecessary expenditure must be avoided, and those expenditures which are necessary in the nature should
गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आप एजुकेशन का इनरोलमेंट 100% कराना चाहते हैं और पिछले 25 साल से लगे हुए हैं, फिर भी आप उस टारगेट पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज अ सीरियस इशू। यू हैव टू फाइंड इट आउट कि व्हाई द फाइनेंसेस विच आर बीइंग गिवन फ्रॉम लास्ट 25 years in order to achieve 100% enrollment, and still it is not happening. So where we are having an issues, so that issues must be resolved. So when we talk about the optimization of expenditure, ध्यान से सुनो, पहले जब हम एक्सपेंडिचर को ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं तो दो चीजें होती है उसमें। एक, वी हैव टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसे क्या करो, अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनीज आर कंसिस्टेंटली इन डेप्ट and they are not able to what, come out of the debt and they are still loss making, sell those companies. Government should not hold unnecessary liability on his head. तो कोई भी unnecessary liability, unnecessary expenditure है उसको क्या करना है, eliminate करना है। ठीक है, तो एक तो ये होता है पार्ट किसका, एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइजेशन का, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया वेयर यू आर स्पेंडिंग विथ सर्टेन टारगेट्स, कि भाई हम ये स्पेंड कर रहे हैं और ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। सो इफ द टारगेट इज नॉट फुलफिलिंग, then you have to re-revise your strategy of expenses in such a way so that you can give the desired result in a given time frame. गिवन टाइम फ्रेम में आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लो, अचीव कर लो। और इस केस में ना तो हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, बल्कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि बिकॉज इफ द डिजायर्ड प्लान इज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द टाइम, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया, तो द्वारका एक्सप्रेसवे वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड 10 years बैक। वो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो कब कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आज से 10 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। and that is completed in 2024, which was supposed to be completed in 2014. You know how much amount of cost is being escalated? It is somewhere around 14,000 crores. 14,000 करोड़ का जो कॉस्ट है ना, escalate हो गया। तो because of delay in the projects who got delayed, that is unnecessary pushing a expenditure. तो जब एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइजेशन की आप बात करोगे तो ये भी आपको एश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी टारगेट्स हैं आपके, वो टाइम पे क्या होने चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट्स हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टारगेट्स हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो इफ यू हैव प्लान टू क्रिएट एन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट 7 years, so that must be completed in next 7 years. It should not exaggerated to 10 years, 12 years, 14 years exaggerate नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो अपना वहां पर अपने वर्ड्स में मेंशन कर लो व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइजेशन। अपने वर्ड्स में मेंशन कर लो, एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइजेशन हैव टू पार्ट्स। वन इज अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को क्या करना है, अवॉइड करना है। सेकेंड पार्ट, वेयर एवर वी आर स्पेंडिंग, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो कैपिटल का हो, इट शुड बी completed with a given time frame, without any delay, ठीक है। आप ऐसे लिखो, मेजर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। मेजर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। Just give me a second, huh?
Sometimes technology creates problem also. Unintentionally, I have activated that setting. So when I am turning it, it automatically taking the clue. तो वो अपने आप से क्लू ले रहा है, ठीक है. और अभी उसने कॉल लगा दिया था, ठीक है. तो आई थिंक फिजिकल कंसोलिडेशन की कुछ बात हुई थी, तो उसको कुछ समझ में आया फिस. तो फिस करके एक मेरा दोस्त है, उसको सेव करके रखा हुआ है, तो उसने फिस को कॉल लगा दिया और उधर से चिल्ला रहा है, हेलो हेलो कर रहा है, मेरे को नहीं. ठीक है, फिर अभी उसने मैसेज किया कि भाई क्या पढ़ा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत घटिया पढ़ाते हो मैं, तो मैंने जिंजर और मंकी बना के भेज दिया. मैंने कहा बाकी तुम समझदार हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा भाई, ये फाइनेंस और इकोनॉमी की बात चल रही है. वो ही इज आर्मी, राइट, तो वो आर्मी में है ठीक है. हार्डली कभी बात होती है बिकॉज ही वॉज डिप्लॉयड आउटसाइड द इंडिया इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. काफी लंबे समय से 6 साल हो गया उसको, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे गया हुआ, ठीक है. तो हार्डली कभी बात हो पाती है ठीक है. अभी उसने देखा, अभी शायद इंडिया में है, तभी वो कॉल लग गया. कह रहा है एक तो तुम कभी कॉल नहीं करते हो और कॉल कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो यार. आई वॉज नॉट अवेयर कि कॉल चल रहा है, मुझे पता भी नहीं कि कॉल चल रहा है. वो कॉल उठ गया, ठीक है, क्योंकि कॉल मैंने लगाया, उसने उठा लिया ठीक है, कॉल चल रहा है. अभी देखा तो कॉल डिस्कनेक्ट किया, फिर मैसेज, तो अभी वही डिसेबल करा था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है. तो बी केयरफुल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो. नाउ द मेजर चैलेंजेस, फर्स्ट one is financial health of both union and state. Financial health of both union and state. इसमें लिखो the pandemic pushed aggregate fiscal deficit and public debt. फिस्कल डेफिसिट, एग्रीगेट फिस्कल डेफिसिट. एग्रीगेट फिस्कल डेफिसिट का मतलब सेंटर स्टेट दोनों का, ठीक है, दोनों का हम एग्रीगेट लेके चल रहे हैं. एग्रीगेट फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेप्ट टू 13.3%, 13.3% and 89.6%. 89.6% of GDP in 2020-2021. However, when economy start recovering, fiscal deficit and public debt receded to 8.9% and 85.1% respectively. But the target limit set under FRBM is 60% of
डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। Hence, it will be a uphill task. Hence, it will be a uphill task for Finance Commission to suggest certain effective measures so that it can be bring down to 60%. ठीक है। Second point, when the GST was implemented, Finance Commission suggested revenue deficit grant to states. Revenue deficit grants to states. Revenue deficit grant to states in order to make up for shortfall between projected and actual revenue collection. This should be continued or not. This should be continued or not. Apart from GST compensation, to states which was discontinued in July 2022. Discontinued in July 2022. ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन का ड्यूरेशन कब से कब तक था? 21st of 2021 to 2026, यानी 1st अप्रैल 2021 to 31st मार्च 2026 तक का। 14th फाइनेंस कमीशन का 14th फाइनेंस कमीशन है 2016 से लेकर कब तक? 2016 से लेकर 2021 तक। तो 14th फाइनेंस कमीशन दे हैव रिकमेंडेड कि स्टेट्स मस्ट गेट व्हाट?
द ग्रांट्स। ठीक है, वो अपने डोमेन में बोल रहा है। हालांकि जीएसटी काउंसिल जो है वो बोलती है कि आपको हम कंपनसेशन देंगे, जीएसटी कंपनसेशन की बात करती है। तो जीएसटी काउंसिल इज सेइंग दैट कि जीएसटी कंपनसेशन देयर विल बी देयर। ठीक है, तो एक जीएसटी कंपनसेशन होगा जो जीएसटी के लगने से जो रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ रहा है हम उससे आपको देंगे। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड कि देयर विल बी शॉर्टफॉल इन द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू। देखो जीएसटी काउंसिल क्या बोल रही है, जीएसटी काउंसिल 5 साल की बात करती है कि 5 इयर्स तक हम देंगे, 17 से लेकर 2022 तक देंगे। फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन बोलता है कि ओके यू हैव वेंट फॉर 2022 बट व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज कि टिल देन देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द प्रोजेक्शन एंड एक्चुअल। तो जीएसटी के अंदर जो आपका प्रोजेक्शन है कि इतना आएगा और एक्चुअल में इतना आया, तो उसके डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए भी हमें स्टेट्स को क्या देना पड़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देना पड़ेगा। दिस इज सजेस्टेड बाय होम, 14 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वो बोला क्योंकि उस समय तक जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसने ये बात बोली। 14 फाइनेंस कमीशन के बाद जब 15 फाइनेंस कमीशन आता है तो वो यूं कर लेता है। क्यों कर लेता है, वो इसलिए कर लेता है क्योंकि जीएसटी काउंसिल बोल देती है। देखो पहले 14 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आया, 14 फाइनेंस कमीशन का जब रिकमेंडेशन आया तो 14 फाइनेंस कमीशन सेड दैट कि सी when the GST is going to be implemented, that GST initially going to create some shortfall, immediate shortfall in the state's revenue. So what you have to do, create a mechanism. Under that mechanism, states must get compensation against the projected revenue and actual revenue they are going to have. ये किसने बोला, 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला। लेकिन जब जीएसटी काउंसिल आया तो जीएसटी काउंसिल में क्या बोला गया, जो एक्चुअली आया उसमें इस तरह की बात नहीं कही। वहां पे क्या बोला गया, दे सेड दैट कि देयर विल बी ए प्रोविजन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन फॉर 5 इयर्स। फाइनेंस कमीशन क्या बोल रहा है, 14 फाइनेंस कमीशन, वो ये बोल रहा है कि जो स्टेट का जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है और जो एक्चुअल रेवेन्यू उसका शॉर्टफॉल जब तक रहेगा तब तक आपको देना है। लेकिन जीएसटी काउंसिल क्या बोलती है, फॉर 5 इयर्स जीएसटी काउंसिल। अच्छा, उसमें भी क्या आ गया, कोविड आ गया। तो जब जीएसटी काउंसिल ने 5 इयर्स का डिसाइड कर दिया कि 5 इयर्स तक का ही देना है, तो 15 फाइनेंस कमीशन चुप हो गया उस पर कि भाई ये तो सेटल हो गया केस, जीएसटी कंपनसेशन वाला केस क्या हो गया, सेटल हो गया। लेकिन कोविड आया और कोविड आने के बाद स्टेट्स ने बोला कि भाई हमें कंपनसेशन पे करो, आगे तक पे करो, नेक्स्ट 5 ईयर तक पे करो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन स्टेट्स आर अंडर सीवियर स्ट्रेन इन द फाइनेंसेस। उनके प्रोजेक्टेड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू में अभी भी क्या है, अच्छा खासा गैप है। तो अब ये चीज देखने वाली होगी कि हाउ द 16 फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू एड्रेस दिस थिंग। वो इसे एड्रेस करता है, उस पर कुछ बोलता है कि इग्नोर कर देता है, क्योंकि दिख रहा है देयर इज अ शॉर्टफॉल, जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है और जो एक्चुअल रेवेन्यू उसमें शॉर्टफॉल है। तो हाउ दिस 16 फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू सी दिस मैटर, क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन ने तो आंख बंद कर ली थी, भाई हम नहीं दिख रहा क्यों, उन्होंने बोल दिया, किसने बोल दिया, जीएसटी काउंसिल वालों ने बोल दिया है हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, वो तो अपना पल्ला झाड़ के निकल गए। लेकिन अब आपके सामने सिचुएशन ये है कि जो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन था 5 इयर्स तक का, वो तो क्या हो गया, वो तो एक्सपायर करके चला गया। अब बताओ क्या करना है, क्योंकि शॉर्टफॉल तो अभी भी है। तो दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द चैलेंजिंग फॉर 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, थर्ड जो कि एक आपका मोस्ट डिस्कस्ड इशू है, ऑफ द बजट बोरोइंग्स का। ठीक है, ऑफ द बजट बोरोइंग्स का तो मैंने 2 लिखा है, आपको तीसरा लिख लो। थर्ड इशू इज ऑफ द बजट बोरोइंग्स। थर्ड इज द इशू ऑफ द बजट बोरोइंग्स। ऑफ द बजट बोरोइंग्स। ठीक है, अब ये तो फाइनेंस कमीशन पे सारा हो गया। अब एक और न्यूज लिखो, ये दूसरा इशू है,
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। FIU स्पेस IND। तो यूपीएससी वालों का अगर मन भटका आपको ज्यादा तंग करने के लिए, तो पूरा नाम नहीं लिखेंगे, FIN स्पेस IND लिख देंगे। अब आप इससे गेस करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। issued compliance show cause notice, compliance show cause notice, compliance show cause notice to 9 offshore virtual digital assets service providers, virtual digital assets service provider, इनको शॉर्ट में VDA स्पेस SP कहा जाता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स स्पेस सर्विस प्रोवाइडर। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर इनको कहा जाता है। ठीक है, and also wrote to Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, to block URL of these entities, block URL of these entities as they are operating illegally without complying with provisions of Prevention of Money Laundering Act, Prevention of Money Laundering Act, in short PML Act, Prevention of Money Laundering Act। ठीक है, अब इसमें लिखो सबसे पहले what is VDA SP, Virtual Digital Assets। What is Virtual Digital Assets Service Provider? Offshore VDA SP, offshore VDA SP are entities that offers services related to
virtual services related to virtual digital assets, virtual digital assets, such as cryptocurrency, such as currencies from location outside the India, from location outside the India. नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन इंडिया VDASP, in India VDASP were bought under anti-money laundering, फॉरवर्ड स्लैश एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ब्रैकेट्स में AML स्पेस CFT फ्रेमवर्क under the provision of PML Act, under the provision of PML Act 2002, PML Act 2002, in March 2023, in March 2023. ठीक है, तो अब पूरा का पूरा केस है क्या, इसको समझते हैं. सी, इवन इन इकोनॉमिक क्लासेस आई टोल्ड यू दैट कि टेरर related things can be happen only when they are properly financed. If you are going to cut down their finances, then there will be less possibility of what? Then there will be less possibility of what? Then there will be less possibility of any kind of what? Any kind of terrorist activities. So it is very important to control that. Fine. Even it was properly documented कि the 9/11 attack was happened because of the proper financing. If the financing was not happened, there is a no possibility of happening of what? 9/11 kind of attack in US. So all over the world, once the 9/11 happened, all over the world, they have focused कि we have to take certain things, certain measures in order to prevent the terrorist financing. ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम हुआ. ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइन, सो दे हैव फॉर्म द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. मेंबर कंट्रीज, दे हैव टू रेगुलरली गो एंड स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरी कंट्री. हर एक कंट्री को आप स्क्रूटनी करते हो, और जो भी कंट्री थोड़ा भी सस्पिशियस लगा तो उसको पहले आप क्या करते हो? पहले आप उसको वार्न करते हो. इफ द वार्निंग इज नॉट गोइंग टू बी टेकन सीरियसली, देन दे आर पुट अंडर ग्रे लिस्ट. ठीक है, एंड gray list, when you are gray listed, then you have to take certain actions in order to address those issues. And if you are not going to address those issues, then you will be what? Blacklisted. And once you are going to be blacklisted, then it is going to be very difficult for you to get financial assistance from any multilateral agencies like IMF and World Bank. Number one. Number two, even if you are going to issue the bonds, with those bonds, I want borrowing. Fine.
but many of the organizations will refuse because you are blacklisted. So country is going to face severe financial issues if they will be put under what? Put under gray list and blacklist. But that gray list and blacklist can be work only when the member countries are also going to have similar law at their domestic level. International level पे तो आपने बोल दिया कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन उसको आप तभी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो जब उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी डोमेस्टिक लॉ भी हो. तो व्हाट वी हैव एग्रीड अंडर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रेमवर्क, वी हैव टू मेक अ लॉ, एंड इन इंडिया द लॉ इज नोन एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आपने कब बनाया? 2002 में बनाया. जब 2002 में बनाया गया, उस समय तक क्रिप्टो करेंसी जैसा कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि सातोशी नाकामोटो जो है वो 2009 में आता है. आपने नाम सुना है सातोशी नाकामोटो? हु इज ही? हाँ, ही इज अ वर्चुअल नेम रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन. तो अब वो बिटकॉइन है क्या? देखो, मैंने बताया था ना कि यू हैव टू क्रिएट अ कैमोफ्लॉज. आपको अपनी बातों से क्या क्रिएट करना होता है? कैमोफ्लॉज क्रिएट करना होता है, जिससे कि सामने वाले को लगने लगे कि जो बोला जा रहा है वही है. नाम देखो क्या रखा? बिटकॉइन. सो व्हेन द पीपल इज गोइंग टू हैव दिस थिंग इन देयर माइंड, बिटकॉइन, तो कॉइन का मतलब क्या हो गया? करेंसी. इट इज नॉट ए करेंसी एट ऑल, लेकिन नाम क्या रख दिया? क्रिप्टो करेंसी. तो जो नहीं भी मानना चाहता है उसको भी क्या लगेगा? ठीक है, उसको भी लगेगा क्या? कि करेंसी ही है. ठीक है. अब अगर किसी का नाम शाहरुख है, ठीक है, किसी का नाम शाहरुख है, तो ना चाहते हुए भी उसका कंपैरिजन किससे करा जाएगा? शाहरुख खान से होगा. अमिताभ अगर नाम है, किसी ने अगर अमिताभ नाम रख दिया, ठीक है, तो हाँ वो करेगा. और शाहरुख खान है तो वो ऐसे करेगा. ठीक है, वो उसके दिमाग में आ जाएगा भैया शाहरुख खान है, तो वो हाथ एक बार ऐसे करेगा ही करेगा. ठीक है. अब गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी जिसने नाम रखा है शाहरुख. क्यों रखा भाई तुमने नाम? ठीक है, अब नाम रखा है तो कंपैरिजन तो होगा ही होगा. ठीक है, लेकिन कई बार जानबूझ के किया जाता है कि कंपैरिजन हो. ठीक है, जो नाम रखे गए, शाहरुख खान रखा गया, लोगों ने अमिताभ बच्चन नाम रख दिया, ऋतिक नाम रख दिया. क्यों रखा? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था. उन्हें अच्छा लगता है ऋतिक रोशन, तो मेरे बच्चे का नाम भी क्या होना चाहिए? ऋतिक रोशन होना चाहिए, भले वो प्रेम चोपड़ा जैसा दिखता हो. ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम तुम क्या रखेंगे? ऋतिक रोशन रखेंगे, चाहे गुलशन ग्रोवर जैसा दिख रहा हो, चाहे प्रेम चोपड़ा जैसा, अमरीश पुरी जैसा दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये चीज है. बट समटाइम्स द नेम इज बीइंग गिवन to create a misconception in the mind of the people. So very carefully they have mentioned the name what? Bitcoin. It is related to something coin, that is currency. And again you have mentioned what? Cryptocurrency. So cryptology is a method based on blockchain mining. ठीक है, blockchain mining होता है. आपने torrent यूज किया कभी? हाँ, torrent यूज नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा लाइफ में? तो टॉरेंट कैसे वर्क करता है? हाउ दिस वर्क टॉरेंट? हाँ, ये नहीं पता, यूज तो किया लेकिन पता नहीं कैसे वर्क करता है. तो टॉरेंट में क्या है? सपोज दैट आप यहां पर है, ठीक है, एंड यू स्टार्टेड डाउनलोडिंग फाइल व्हाट? ए. आप यहां पर हैं एंड यू आर N1. आप क्या हो? N1 हो. ठीक है, अब वहां पर क्या है? टॉरेंट्स और ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं. एग्जैक्टली ऐसे नहीं करता, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल चीज है ब्लॉकचेन. तो अब N1 जो है, N1 एक नोड है. ठीक है, अब यहां पर एक दूसरा नोड है N2, फिर N3, फिर N4, N5, इसी तरह से N6, N7, N8, N9. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं. ठीक है, अब है क्या कि एक पर्सन है, सपोज दैट यहां पर NZ. ठीक है, अब NZ के पास उस फाइल का 100% कॉपी है. फाइन, 100% कॉपी है. फाइन. तो टॉरेंट में क्या होता था, पहले उसको समझ लो. तो टॉरेंट क्या करेगा? टॉरेंट, आप N1 हो,
और जैसे ही आप टॉरेंट से कनेक्ट हो गए तो टॉरेंट आपको सबसे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और ये आपस में भी कनेक्टेड है, ये सारे आपस में भी कनेक्टेड है, और टॉरेंट आपको क्या कर दिया, सबके पूरे नेटवर्क में आपको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब आप इनसे भी जुड़ गए और आप इससे भी जुड़ गए। तो अब क्या होगा कि आपको साइमल्टेनियसली फाइल ट्रांसफर होकर आ रही होगी। अगर इसके साथ कनेक्ट हो गए तो आपको 100% फाइल का जो हिस्सा है वो ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप बाकी से भी जुड़े हुए हो तो जिसके पास जितना हिस्सा है, ठीक है, जो भी पैकेट है उसके पास, उस पैकेट की कॉपी बना के वो आपको भेज रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप साइमल्टेनियसली कॉपी ले भी रहे होते हो और साइमल्टेनियसली कॉपी दे भी रहे होते हो, ठीक है। अब इसी में अगर आप इसको हटा दो, ठीक है, अगर आप इसको हटा दो, अगर आप इसको हटा दोगे तो अब कोई भी जो फाइल है, कोई भी जो फाइल है वो आपको कहां से कौन सा हिस्सा आ रहा है और कहां से कौन सा हिस्सा किसको जा रहा है, नोबडी नोज दैट, ठीक है। अब उसको आप कैसे पकड़ सकते हो, किसको जा रहा है किसको आ रहा है, उसके आईपी एड्रेस से आप पकड़ सकते हो, ठीक है, विद देयर आईपी एड्रेस। बट अगर हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करें तो हम उसके आईपी एड्रेस को भी क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो वहां पर आईपी एड्रेस भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब आईपी एड्रेस भी नहीं है तो नोबडी नोज दैट कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग एंड टू वेयर इट इज गोइंग, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से फाइल चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से फाइल चाहिए, तो आपका कनेक्शन जो है, हाथ पीछे करके बैठो, सीधे बैठो, कमर सीधे करके, ठीक है, ठीक। तो अगर आपको वो फाइल जल्दी से जल्दी चाहिए और वो उस फाइल का छोटा छोटा टुकड़ा सबके पास है, ठीक है, सपोज दैट 0.001% is with everyone and the size of the file is 1 करोड़। फाइल का साइज कितना है, 1 करोड़ के बराबर है, और सबके पास कितना है, 0.001। तो आपको उस पूरी फाइल को कलेक्ट करने में हो सकता है अगले 10 साल लग जाएं। बट इफ यू हैव वेरी पावरफुल कंप्यूटर, if you have very powerful computer with very powerful what, with very powerful processing speed, then that powerful processor is going to connect with many of the computers and create one file, and that one file is known as what, Bitcoin। वो फाइल ही क्या है, वो फाइल ही है Bitcoin। तो इसीलिए बोला गया कि you have to mine it, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनिंग करना पड़ेगा, और माइनिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स लगेंगे, एंड यू नीड ए वेरी पावरफुल कंप्यूटर, देन यू कैन माइन ए बिटकॉइन, ठीक है। जब बिटकॉइन आया था, ठीक है, इंडिया में थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ था, तो एक स्टूडेंट आके मेरे से बोला, सर बिटकॉइन ले लूं। उस समय 20,000 का था, इंडियन रुपए की बात कर रहा हूं, इंडियन रुपी में उस समय 20,000 का था बिटकॉइन। तो उसने बोला कि ले लूं। मैं कहा एक काम कर, आंख बंद कर, लेके छोड़ दे, ठीक है। ये बात है 2012 की, 12-13 की बात है, बिटकॉइन ले लूं। मैं कहा ले ले। उस समय 20,000 रुपए का था एक बिटकॉइन, ठीक है, और उसने ले लिया और छोड़ दिया, ठीक है। 2022 में जब कोविड खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, तो एक नंबर से कॉल आया करीब 7-8 बार। तो फिर मैंने कॉल बैक किया, बोला कि सर आप शायद ना पहचानते हो, ठीक है, लेकिन शादी है मेरे, आपको आना है। मैंने कहा यार मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आई वॉज इन हैदराबाद एट दैट टाइम, तो वो दिल्ली में। तो उसने बोला कि सर आप अभी भी पहचान नहीं रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा नहीं, आप मुनीर का आते थे पढ़ाने के लिए, दिल्ली में है मुनीर का। मैंने कहा हाँ आता था। अब बैच का नाम बोला उसने, मैं कहा नहीं नहीं यार इतना याद नहीं। कहता सर अब मैं जो बोलूंगा आपको याद आ जाएगा, आपके पास एक स्टूडेंट आया था बिटकॉइन के बारे में पूछने के लिए। मैंने कहा हाँ 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 आया था सर, मैंने 10 खरीदे थे। 10 बिटकॉइन खरीदे थे, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख रुपए ही हैज इन्वेस्टेड, ठीक है। अब तुम आइडिया लगा सकते हो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 10 साल में कहां पहुंच गया। हालांकि उसने क्या किया, बीच में 1-2 बिटकॉइन निकाल दिए, एक कोविड के टाइम पे निकाला, ठीक है। तो ही इज लाइक हैविंग 4-5 करोड़ रुपीस वेल्थ उस बिटकॉइन के दम पर,
ठीक है, तो 20,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लगभग लगभग 4.5-5 करोड़ का मालिक बना दिया। ठीक है, मैंने उसको यही बोला था कि आंख बंद करके लेना, मतलब इसमें पैसा डाल रहे हो, मतलब पैसा डालने के बाद भूल जाना। ठीक है, अच्छा, ही वॉज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। ठीक है, तो बहुत रिच फैमिली से है, तो 2-4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। वो मजे मजे में, देखो, सी व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हिज दैट मैन इज कि ही इज फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली इन टर्म्स ऑफ मनी। बट जब बात आती है किसकी, जैसे उसमें ना 3 इडियट्स में वो बोलता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कौन, चाचड़ साहब जो हैं, वो बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे की डिग्री यहां पे चाहिए। तो क्या बोलता है कि पूरे हिमाचल में लोग मुझे सलाम ठोकते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलते हैं, अनपढ़। तो सेम काइंड ऑफ इश्यूज के लिए भी है कि घर में पैसा तो बहुत है बट गवर्नमेंट जॉब वाला कोई नहीं है। तो इसलिए वो बंदा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तलाश में नौकरी के लिए आया था। एसएससी की तैयारी करने आता था लड़का स्कॉर्पियो से। ठीक है, मुझे लगा कि ड्राइवर है ये, कह रहा रखो गुरुजी क्या बोल रहे हो, मारिए। मैंने कहा तेरी है, बोला हाँ मेरी है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की क्या जरूरत है, कह रहा नहीं वो तो स्कॉर्पियो में इसलिए लेकर आया हूं कि पापा फॉर्च्यूनर लेके गए हैं। मैंने कहा अच्छा फॉर्च्यूनर भी है, तो मैंने कहा हाँ फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो। मैंने कहा पूरा घर ही गुंडागर्दी में इन्वॉल्व है। बोला नहीं नहीं सर ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ही इन्वेस्टेड एंड ही बिकम व्हाट काइंड। अब वही बिटकॉइन के दम पे क्या है, वो बिटकॉइन के दम पे ही वो अपना सारा बिजनेस उसने सब उसने बना लिया बिटकॉइन के दम पर। ठीक है, तो कुछ लोगों की किस्मत ऐसे भी चमक गई। बट बिटकॉइन ऑल ऑफ द सडन पॉपुलर हुआ क्यों? Why? Because there is a high demand because of the anonymous nature of the Bitcoin. तो बिटकॉइन का जो एनोनिमस नेचर है वो उसको क्यों, क्योंकि आप नहीं जान सकते हो कहां से आपके पास बिटकॉइन आया है, और अगर आप पासवर्ड भूल गए तो गए, खत्म हो गया, गेम ओवर आपका। अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए तो आप पासवर्ड उसका रीसेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कुछ ट्रेड थे that has created a demand of the Bitcoin of the cryptocurrencies among whom those who are having huge amount of money but they cannot invest in the legal means, जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है। ठीक है, उनके पास, जिनके पास बहुत पैसा है एंड दे आर नॉट अलाउड, वो भाई अगर अब हाफिज सईद जैसा है या दाऊद इब्राहिम के पास जो इतना सारा इलिसिट मनी है, वो कहां पे लगाएगा, बिटकॉइन में लगाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड ऑफ बिटकॉइन स्टार्टेड राइजिंग। देन द नॉर्मल पीपल दे आल्सो फाइंड दैट कि इट इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, इट इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइन, एंड द प्रॉब्लम बिकम बिगर व्हेन पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एज अ करेंसी। वो एसेट है, ठीक है, लेकिन उस एसेट को लोगों ने किसके फॉर्म में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, करेंसी के फॉर्म में। जैसे गोल्ड एक मेटल है, यू आर यूजिंग द गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, you started using the gold for the making of the ornaments, but later on you started accepting gold as a what, medium of exchange, and then gold become what, a medium of exchange, that is currency. So similarly it started with the asset, but gradually some people started using the bitcoin। ठीक है, बिटकॉइन को किसके रूप में, पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तब तो उसकी वैल्यू में और तेजी से राइज होने लगा। तो ये बिटकॉइन और किसके बेसिस पर वर्क करता है, ये वर्क करता है किसके बेसिस पर, आपका क्रिप्टोग्राफी पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो क्रिप्टोलॉजी से ये रिलेटेड है। फाइन, ब्लॉकचेन माइनिंग पे यूज होता है। अब जब ये करेंसी के रूप में एक्सेप्ट होने लगा, देन इट स्टार्टेड चैलेंजिंग टू हुम, द डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, because central bank is a centralized agency, whereas bitcoin anybody can create a bitcoin and at the same time nobody can create a bitcoin। कोई भी क्रिएट कर सकता है और उसको कोई भी क्रिएट नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो बिटकॉइन इज नॉट लिमिटेड विद द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड दे स्टार्टेड गेटिंग कंसर्न, वो कंसर्न शो करने लगे। अब इंडिया में जब ये बात उठी तो पहले ही पूछा कि ये होता क्या है भाई बिटकॉइन। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा है ये होता क्या है। उन्होंने कहा अरे तुम लोग बताओ यार, आरबीआई वाले तुम लोग बताओ क्या है ये बिटकॉइन। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा होता है। अच्छा ऐसा ऐसा होता है, तो हमारे लिए भी इंतजाम करो यार। ठीक है, तो उनका नहीं सर इलीगल है। अच्छा अच्छा इलीगल है,
आप कैसे बताएंगे लीगल है कि इलीगल है? तो आरबीआई ने समझाया कि भैया डिजिटल करेंसी के रूप में है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो वैनिश हो जाएगी अगर बिटकॉइन को आप एक्सेप्ट कर लोगे तो। कई सारे कंट्रीज ने क्या किया रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक एल सल्वाडोर। सो कंट्रीज लाइक एल सल्वाडोर दे हैव एक्सेप्टेड that thing as a currency. So El Salvador and many other countries, they have accepted that Bitcoin as a what? That Bitcoin as a currency. So this issue become more prominent and severe when countries started accepting Bitcoin as a legal tender. Fine. So they started accepting as a legal tender, the issue become bigger. And then countries like India, they said that कि Bitcoin is not a legal tender. It can be considered only as an asset. इंडिया के अंदर बिटकॉइन को आप एज अ एसेट ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, एसेट्स, और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसे आप बॉन्ड परचेस करते हो, आप शेयर्स को परचेस करते हो, ट्रेजरी बिल्स को परचेस करते हो, सिमिलरली यू कैन सेल एंड परचेस व्हाट? बिटकॉइन, ठीक है। बट इट इज नॉट व्हाट? इट इज नॉट ए व्हाट? लीगल टेंडर फॉर करेंसी पर्पस, नंबर 1। नंबर 2, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अगर आप उसको यूज करोगे तो वो इंडिया के अंदर क्या है? टैक्सेबल है। बट बीइंग टैक्सेबल डिडंट मीन दैट इट्स अ लीगल थिंग। टैक्सेबल है लेकिन वो लीगली अलाउड चीज नहीं है। अब लीगली अलाउड नहीं है तो टैक्सेबल कैसे है? तो गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी इलीगल चीजें होती हैं जिसको कि हम टैक्स करते हैं, तो इसलिए हम उसको भी टैक्स कर रहे हैं, बट इट इज नॉट लीगल प्रॉपरली। फाइन, because there is no proper authority and it is not registered with the SEBI, Securities and Exchange Board of India। तो अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जिनको उसमें ट्रांजैक्शंस करने थे उन्होंने ट्रांजैक्शन कहां से करना शुरू कर दिया? बाहर से, क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है। तो जो बिटकॉइन ट्रेडिंग करा रहे हैं लोग, ठीक है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट selling and purchasing of securities। सिक्योरिटीज की सेलिंग और परचेसिंग को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। वहां जाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप इनरोल करके क्या कर सकते हो? शेयर्स को खरीद भी सकते हो, बेच भी कर सकते हो। इसी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज बन गए, जहां से आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद भी सकते हो और क्या कर सकते हो? सेल भी कर सकते हो। तो जब इंडिया में बैन हो गया तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने इंडिया के बाहर उसके नेटवर्क को स्टैब्लिश कर दिया और वो नेटवर्क के थ्रू क्या करने लगे? आप उसे ट्रेड करने लगे। तो इट वॉज वेल अवेयर विद द गवर्नमेंट, आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या बोला और आरबीआई ने क्या बोला? खासकर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या बोला कि आप क्या करो, आप हमें डिटेल प्रोवाइड कराओ सारी, कि कहां किसको कैसे आप रजिस्टर करके रखो। भले ही बिटकॉइन हमें ना पता चले, बट एटलीस्ट लेट अस नो ना कि हु इज ट्रेडिंग हियर। स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन ट्रेडिंग कर रहा है? एटलीस्ट एनिमी ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। बट इसको रिस्पॉन्स नहीं किया इन एक्सचेंजेस ने। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि बिकॉज वी डू नॉट नो हु इज ट्रेडिंग फ्रॉम इंडिया और थ्रू इंडिया एंड बाय इंडिया, and it may be create a big problem for whom? Big problem for our national security. So there is a need to make certain amendments in Prevention of Money Laundering Act and empower the act so that we can take necessary actions against such kind of offshore exchanges, service providers, SPs, ठीक है। तो वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट के जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वी कैन टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट देम। तो लास्ट ईयर द एक्ट वाज अमेंडेड, मार्च 2023 में एक्ट को अमेंड किया, और जैसे ही अमेंड किया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गॉट पावर टू स्क्रूटनी दोस एक्सचेंजेस और सर्विस प्रोवाइडर्स। वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट जो एसेट्स हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको स्क्रूटनी किया और उनको नोटिस भेज दिया कि आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या बोला कि आप इसे क्या कर दो, आप ये यूआरएल बैन कर दो, ताकि इस पे किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी ना हो पाए। अब अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो जिन्होंने पैसा लगा रखा है और दे रखा है वो तो हल्ला मचा देंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लायंस करना पड़ेगा ताकि इसका मिसयूज ना हो। ये है पूरा का पूरा केस। अब यहां पर आपको
दो तीन चीजें क्लियरिफाई होनी चाहिए। एक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएल एक्ट, उसका पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, वो है क्या, किसके अंडर में काम करता है, क्या क्या काम करता है, वो पता होना चाहिए। देन यू ऑल्सो हैव द अवेयरनेस ऑफ डिजिटल एसेट्स लाइक व्हाट, लाइक क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग क्या होता है, वो मैं आपको कल समझा भी दूंगा, लिखा भी दूंगा। तो जब तक मैं यहां पर हूं, नेक्स्ट 2-3 दिन तो मैं हूं, तो 2-3 दिन के सेशन में ये और सारे इश्यूज जो है वो मैं डिटेल में आपको करा दूंगा। लेटर ऑन, वट एवर व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर, आई विल गो बैक टू दिल्ली अगेन, देन व्हेनेवर आई विल टेक क्लास देयर, आई विल प्रोवाइड यू द वीडियोस। तो आप उन वीडियोस को डिटेल में देख सकते हो। साथ में आज जो मैंने आपको लिखा है ना फाइनेंस कमीशन का, उसका मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको, सारी चीजें जो लिखाई हैं शॉर्ट में लिखा है, मेरे पास डिटेल में है। तो डिटेल वन आई विल शेयर विद यू, तो फॉर रेफरेंस यू कैन यूज इट। बट जो मैंने आपको लिखाया है दैट इज वेरी क्रिस्प वन फॉर द मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने लिखाया है। बट कई बार होता है ना कि स्टूडेंट्स वांट टू रीड इन द डिटेल, ठीक है, तो डिटेल वाला मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, बाकी मैं लिखा दूंगा। ठीक है, ओके।